automobile sector in particular and the components together have been affected by several things, inclusive of the mindset. Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. Was the finance minister correct? Is it true that the millennials have shifted from buying their own car to using Ola and Uber for commuting? What's your take on this? Should we buy a car or should we rent one? Let's figure out the financial feasibility of both these options that we have through an exercise on Excel. Alright, so let us perform the task of knowing whether to buy the car or whether to use Ola or Uber on Excel. What I have done here is I have taken two simple examples, two simple cases. पहले केस में हम मान के चल रहे कि हम कार को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम एक दिन में हमारा जो ट्रैवलिंग किलोमीटर्स है वो ज़्यादा है, और दूसरे केस में हम मान के चल रहे हैं that the number of kilometers that we are traveling in a day is on the lesser side. Alright. The car that we are buying in both the cases is worth 7 lakh rupees. This includes everything, the registration cost, the insurance cost, the road tax that you need to pay. ठीक है, शोरूम से आपके घर तक आने का जो भी कॉस्ट है सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो गया है. दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग. ऑलराइट, 20% इज द डाउन पेमेंट दैट वी आर मेकिंग. सो 7 लाख का डाउन पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 20%, दैट टर्न्स आउट टू बी 1,40,000. ऑलराइट, प्रीटी सिंपल, इज इक्वल टू 20% ऑफ B3. सो द डिफरेंस अमाउंट इज डेफिनेटली द लोन दैट वी नीड टू टेक. सो 7 लाख का हमारा गाड़ी का प्राइस है, 1,40,000 हमने डाउन पेमेंट किया है, तो 5,60,000 हमारा लोन का अमाउंट हो गया. The loan that we are taking is for 5 years. Again, I am assuming this. And the rate of interest that is going around in our country right now for a car loan is somewhere around 8 to 8.5%. So I have taken it on the higher side as 8.5%. Since we are going to pay monthly, हम लोग EMI के फॉर्म में पे करने वाले पैसा. So I have taken the mode as monthly, और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो I have taken the number as 12. Now we need to calculate the monthly EMI that we need to pay. So the monthly EMI निकालने के लिए we have a very simple formula, that is the formula of PMT. Let us see कैसे वर्क अराउंड होता है ये. So the formula is pretty simple. The first thing that आप फॉर्मूला में देख पा रहे हो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है. The first thing that we need to insert is the rate. अब सिंस हमारा पेमेंट मंथली होने वाला है, तो हमको जो रेट भी डालना है वो मंथली ही डालना रहेगा. So हमारा सालाना रेट 8.5% है, बट सिंस वी नीड टू पुट इन द मंथली वैल्यू और द मंथली रेट, विल हैव टू डिवाइड 8.5% by 12. तभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे B7 डिवाइड बाई B8 हमने किया है. कॉमा, the next thing that they are asking is NPER. This is basically the number of times you need to make the payment. तो 5 साल तक आप पेमेंट कर रहे हो, मंथली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो. So total number of payments that you need to make is somewhere around 60. So that is what we have done. B6 into B8, that is B6 is number of years and B8 is the number of times you are paying in a year, that is 12 times, since आप monthly कर रहे हो. Alright, and the last thing that they are asking is the present value. तो आपने आज कितना लोन लिया है, that is the present value. So the loan that you have taken is 5,60,000. Alright, so हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ डाला है, तब जाके हमारा जो PMT का वैल्यू है वो पॉजिटिव आया है. अगर यहाँ पे हम ये नेगेटिव नहीं पुट करते तो हमारा PMT नेगेटिव आ जाता. Since we do not want that, we want an exact पॉजिटिव नंबर की कितना हमको पे करना है, दैट इज वाई वी हैव टेकन द नेगेटिव वैल्यू हियर. फ्यूचर वैल्यू और टाइप ये ऑप्शनल चीजें हैं, अगर हमको पता है तो हम डाल सकते हैं. सिंस हमारे तो फ्यूचर वैल्यू 0 है. क्यों 0 है फ्यूचर वैल्यू हमारी? बिकॉज 5 साल में हमारा लोन पूरा का पूरा रीपे हो जाएगा. कि जब हम EMI पे करते हैं तो EMI में हम सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पे करते, वी ऑल्सो पे द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट एज वेल. सो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है 5 साल में या 60 मंथ्स बाद वो 0 हो जाएगी. ऑलराइट, सो ये मंथली EMI टर्न्स आउट टू बी 11,489. So how much total payment that you will be making through EMI? Let us find that out. So it is pretty simple again. 11,489 ये एक मंथ में जाएगी. आप ये 12 बार कर रहे हो और ये 5 साल तक कर रहे हो. So 11,489 multiplied by 12 multiplied by 5. Alright. इसमें से प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है? जितना हमने लोन लिया था, 5,60,000 का प्रिंसिपल कंपोनेंट है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो इंटरेस्ट कंपोनेंट है. सो द लोन दैट वी आर पेइंग 5,60,000 का वो हम डिडक्ट कर देंगे 6,89,000 में से, एंड द डिफरेंस विल बी नथिंग बट द इंटरेस्ट पोर्शन. ऑलराइट, सो इन एंड अराउंड आपका टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग द कार अब तक कितना हो गया है? आपका जो डाउन पेमेंट किया आपने वो हो गया, प्लस आपने 6,89,000 वाला कंपोनेंट जो ऐड किया है वो हो गया. हियर आई एम नॉट कंसिडरिंग कि हमने डाउन पेमेंट को टाइम पीरियड 0 पे दे दिया था,
बाकी का पोर्शन हम अलग अलग टाइम पीरियड्स पे कर रहे हैं तो उसको भी डिस्काउंट करके लाना चाहिए. दैट विल complicate the entire process, and that is why I'm trying to keep it as simple as possible so that we understand the crux and the question that we are trying to answer, that whether we should be buying the car or whether we should be using Ola or Uber for traveling. Alright, so here since we are taking the first scenario जहाँ पे हम ज़्यादा distance travel करते हैं दिन का, तो here I have taken the example as 80 kilometers आपका daily travel है. Alright, you're traveling 80 kilometers, so goes without saying monthly आपका traveling हो जाएगा 80 into 30, that is 2400 किलोमीटर्स. हम नॉर्मल एक हैचबैक कार खरीद रहे हैं 7 लाख रुपए में, तो द एवरेज ऑफ दैट कार जो कि जितना किलोमीटर वो पर लीटर के हिसाब से चलेगी, आई हैव टेकन इट टू बी समवेयर अराउंड 15. ऑलराइट, और गिवन द ऑयल प्राइसेस दैट आर राइजिंग इन आवर कंट्री, मैंने पेट्रोल का दाम 1 लीटर का 90 रुपए के हिसाब से लिया है. अगेन दिस कुड इंक्रीज, दिस कुड डिक्रीज, बट दिस इज द असम्पशन दैट आई हैव टेकन एज ऑफ 90 रुपीज. ऑलराइट, तो अपना 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना आता है? अगर हम 90 रुपए का पेट्रोल हमारी गाड़ी में भरवा रहे हैं, ऑलराइट, और हमारी गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर में, तो हमारा 1 किलोमीटर का खर्चा आ जाता है 6 रुपए. ऑलराइट, 90 डिवाइड बाय 15, वेरी सिंपल, वेरी इजी. सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर मंथ कितना हो जाता है हमारा? 2400 किलोमीटर हम चल रहे हैं, 6 रुपए हम 1 किलोमीटर के दे रहे हैं. सो 2400 मल्टीप्लाइड बाई 6 वुड बी आवर टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर मंथ. वैसे ही हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर ईयर कितना हो जाएगा? 14,400. ये आप मंथली दे रहे हो, इनटू 12, तो आपका पूरे साल का आ जाएगा. अगेन पेट्रोल प्राइस राइज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वी कैन नॉट रियली प्रेडिक्ट दैट, सो आई हैव टेकन इट एज कांस्टेंट एज 90 रुपीज. अदरवाइज इट कुड इंक्रीज और डिक्रीज एट द वेरी सेम टाइम. नेक्स्ट अप वी हैव इज मेंटेनेंस. सो साल का ऑलमोस्ट 7 लाख की गाड़ी पे 30,000 जितना मेंटेनेंस लगता है. ऑलराइट, सो साल का मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हमारा 30,000 है, तो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा हो जाएगा 30,000 डिवाइड बाई 12. क्वाइट सिंपल. ऑलराइट, सो लेट अस अवॉइड दिस सेल फॉर नाउ. एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव कंसिडर्ड हियर इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट वी नीड टू कंसिडर. देखो, आपने गाड़ी बाय कर ली है, अब गाड़ी आपने बाय नहीं की होती तो जो पैसा आपने डाउन पेमेंट में दिया है वो आप कहाँ यूज करते हैं, वो भी अपने को कंसिडर करना जरूरी है. तो एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि हमने जो डाउन पेमेंट किया है उस पे हमारा जो रिटर्न आ रहा होगा वो 9% बेयर मिनिमम रिटर्न आ रहा होगा. 9% रिटर्न निकालना इज नॉट दैट वेरी टफ. यू कैन इन्वेस्ट इट इन म्यूचुअल फंड्स और यू कैन इन्वेस्ट इन a mix of mutual equity and debt mutual funds and you'll get 9% easily. Alright, so 9% हम मैंने bare minimum return या फिर opportunity cost माना है कि जो down payment मैंने किया है. Alright, the down payment which I have done is of somewhere around 1,40,000. उस 1,40,000 पे I'll be making an yearly amount or an yearly interest of somewhere about 9%. So that will turn out into 12,600. So this is nothing but B4 into 9%. B4 is the value of your down payment into 9% is the interest that you are making. Alright, ये पूरे साल का है. Again we need to find things monthly basis पे. तो monthly basis पे मेरा opportunity cost कितना आ जाता है? मेरा opportunity cost आ जाता है 12,600 divided by 12. So quite simple, quite easy. Alright. Now what I'm going to do is मैं कॉस्ट निकालने वाला हूँ कार बाय करने का पर किलोमीटर बेसिस पे, कि जो पर किलोमीटर बेसिस पे मेरे मंथली एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कितने हैं. ऑलराइट, मेरा 1 किलोमीटर का महीने का कितना खर्चा है. सो 1 किलोमीटर में अपनी खुद की गाड़ी चला रहा हूँ तो उसका कितना खर्चा टोटल मुझे लग रहा है. ऑलराइट, जैसे 6 रुपए पेट्रोल के लग रहे थे सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए, बट टोटल गाड़ी खरीदी है मैंने, EMI भी आ गया, मेंटेनेंस भी आ गया, सब कुछ कंसिडर करके 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने का मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ. सो यहाँ पे वो चीज समझते हैं. सो B10 प्लस B24 प्लस B28 प्लस B33, तो हमारे जो भी एक्सपेंडिचर्स थे उसको मैंने यहाँ पे एड अप कर दिया है. सो B10 मेरा कौन सा है? B10 इज द EMI दैट वी आर कंसिडरिंग. B24 is the cost of petrol. B28 is nothing but the maintenance, and B33 is the opportunity cost that we have considered. Alright, since we are studying finance and economics, we must be aware about the opportunity cost that we incur whenever we buy something. कि वो ही पैसा कहीं और चीज में डल सकता था या फिर इन्वेस्ट हो सकता था, तो उस चीज को भी मैंने कंसिडर किया. सो आई हैव कंसिडर्ड ऑल दी कॉस्ट. ये सारे कॉस्ट मैंने मंथली बेसिस पे कंसिडर किए हैं, इसलिए मैंने जो डिवाइड भी किया है किससे किया है? B17 से किया है. सो B17 से डिवाइड किया है, सो दैट इज नथिंग बट योर ट्रैवलिंग दैट यू विल बी डूइंग इन अ मंथ. तो वो 2400 किलोमीटर है. सो वो अमाउंट आ रहा है हमारा 12 रुपए. ऑलराइट,
कि मेरा 12 रुपए करीबन 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का खर्च हो रहा है, गिवन दैट मैं खुद की गाड़ी खरीद रहा हूँ एंड गिवन दैट मैं दिन का 80 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ। अगर ये 80 किलोमीटर की जगह हम डिस्टेंस कम ज्यादा करते हैं तो ये कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिकॉज दिस वुड स्ट्रेट अवे अफेक्ट योर पेट्रोल एक्सपेंस एंड एट द वेरी सेम टाइम टू सम एक्सटेंट मेंटेनेंस के कॉस्ट को भी ये अफेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो वी हैव फिगर्ड इट आउट एज 12 रुपीज पर किलोमीटर बेसिस पे। नाउ व्हाट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू डू इज कि ये 12 रुपए पर किलोमीटर बेसिस पे आपका गाड़ी बाई करने का खर्चा आ गया है, और गाड़ी बाई करके आप कितना खर्चा करोगे महीने का पर किलोमीटर बेसिस पे वो आ गया। अब आप अपना ओला और उबर जो यूज करते हो उसमें आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपने वहां पे कितना पेमेंट किया है अब तक और आप कितना किलोमीटर वहां ट्रैवल किए हो। अगर वो डिवाइड करके आपको जो नंबर मिल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल वो नंबर आपको 15 मिल रहा है, सो इन दैट केस बाइंग योर ओन कार इज अ गुड थिंग, इज अ बेटर थिंग टू डू, बिकॉज आप 12 रुपए में ट्रैवल कर पा रहे हो, खुद की गाड़ी में खुद का कन्वीनियंस है। आप जब चाहो गाड़ी यूज कर सकते हो, कोई हेल्थ इशू आ जाते तब भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग योर ओन कार। ऑलराइट, तो वो चीज को मैं अगेन कंसिडर नहीं कर रहा हूँ सिंस मैं ओनली फाइनेंशियल एंगल देख रहा हूँ। सो ये सिंस आप ये दोनों नंबर्स को जब कंपेयर करते हो और आपको दिख रहा है कि आपका गाड़ी बाई करने का जो खर्चा है वो सिर्फ 12 रुपए पर किलोमीटर है और आपका ओला उबर का जो खर्चा है वो शायद पर किलोमीटर बेसिस पे 15 या 18 है, इन दैट केस बाइंग योर ओन कार इज अ बेटर थिंग। जनरली ओला उबर में कैसे होता है कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ओला उबर यूज कर रहे हो तो कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं आता है पर किलोमीटर बेसिस पे, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट उनका फिक्स कॉस्ट होता है, उसके बाद वो लोग पर किलोमीटर पे थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते जाते हैं। सो इफ आई टेक द अजम्पशन कि 15 रुपीज आता है पर किलोमीटर का ओला उबर पे, सो इन दैट केस गिवन दैट आई एम ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर्स पर डे, आई विल बी वेरी मच विलिंग टू बाय माई ओन कार, given that there is a financial benefit as at the very same time there are conveniences also in buying your own car. Alright, so this is one way to look at it. The other way that I am trying to figure out whether we should be buying the car or not, whether we should be buying the car or whether we should be using Ola or Uber is total cost देखते हैं। ये तो मेरा पर किलोमीटर का कॉस्ट आ गया, एक टोटल कॉस्ट का फिगर भी अपने निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फिगर देखो हमने दोनों केसेस में निकाला है कि 5 साल के लिए मैं गाड़ी बाई करके रख रहा हूँ और फिर 5 साल के बाद मैं गाड़ी रीसेल कर रहा हूँ, तो उसका मेरा टोटल कितना खर्चा है। एंड एट द वेरी सेम टाइम में 5 साल के लिए एवरीडे बेसिस पे मंथ आफ्टर मंथ इफ आई एम यूजिंग ओला उबर तो मेरा कितना खर्चा है। सो आई हैव एडेड अप ऑल द कॉस्ट। ऑलराइट, सो B4 इज द कॉस्ट दैट वी आर इंकरिंग, वो डाउन पेमेंट हो गया हमारा। ऑलराइट, सो दैट इज द डाउन पेमेंट दैट वी आर मेकिंग। Then we have B11. B11 is nothing but the cost, the total payment that we'll be making through EMIs. Alright, तो हमने गाड़ी का जो भी खर्चा है बाय करने का वो सब हमने B4 और B11 में कंसिडर कर लिया। B25 is the total cost of petrol per year basis पे, इसलिए B25 को मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है। At the very same time we have B27 which is nothing but the maintenance cost per year. So again I have multiplied that by 5 to figure out the total maintenance cost over 5 years. Then lastly we have B32, that is the opportunity cost per year basis पे. Alright, again that I have multiplied it by 5 to consider the entire opportunity cost for 5 years. Alright, and lastly I have subtracted B39. Now what is this B39? B39 is the resale value. अगर गाड़ी मेरी 80 किलोमीटर पर दिन चल रही है and I am using that car for 5 years, alright, in that case I cannot expect a resale value of more than 20-25%. Let's say I've taken it as 20%. You can change the number in the Excel. When you get the Excel, you can download the Excel from the link below. But yes, what I've done is I've taken the resale value as 20%. So पूरा तामझाम यहाँ पे कंसिडर कर लिया गया है, गाड़ी खरीदने का जो भी खर्चा है, पेट्रोल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, रीसेल वैल्यू तक भी यहाँ पे कंसिडर कर लिए। तो सब कुछ ऐड करके the amount of expenditure that will be incurring is somewhere around 17.6 lakh. At the very same time, यही चीज के लिए इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर हम ओला उबर यूज करते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज द अमाउंट इज 21.6 लाख। अब ये कैसा है 21.6 लाख? वी हैव मल्टीप्लाइड B30, दैट इज 1 किलोमीटर का जो खर्चा है ओला उबर में। मैंने 15 का एग्जाम्पल लिया। यू कैन ओपन अप योर एप्लीकेशन ऑफ आइदर ओला और उबर एंड यू कैन सी कि आपने कितना पैसा दिया है ओला उबर को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ किलोमीटर दैट यू हैव ट्रैवल्ड यूजिंग ओला उबर। सो B30 you have, then you have B17, that is the monthly travel. Alright, so B30 into B17 monthly travel into 12 तो yearly travel आ गया, into 5 तो 5 साल का total travel आ गया। तो हमने उसको किया है तो 21.6 लाख जितना आ रहा है।
So you will be better off by somewhere around 22% given that you are buying your own car, given that you are traveling 80 kilometers a day. Alright, आप अपने हिसाब से एक्सेल में चेंजेस कर सकते हो. Say for example, अगर आप 60 kilometers ही travel करते हो तो in the very same Excel sheet which you can download from the link below, you can make that change and you can see whether now what is better for you, whether to rent it or whether to have your own car. In the very same way, I have created the Excel for given that we are traveling using the car for short distances. Majority of the things are very much similar to the previous Excel that we had seen. The price of the car is same, the down payment amount is same, the loan amount is same, the number of years are same, the rate of interest is same, mode monthly payment we are going to make since हम EMI के through करने वाले हैं, monthly EMI का calculation same है. Almost most of the things till this point are similar. डिस्टेंस जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो इस बार कम कर रहे हैं. इन द प्रीवियस केस वी वर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स बट नाउ वी आर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स पर डे. ऑलराइट, सो उसके हिसाब से हमारे जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा. बट हाउएवर द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल वुड रिमेन द सेम, दैट इज 90 रुपीज, बट द ओवरऑल कॉस्ट on a monthly basis and on yearly basis would differ. Alright, so that has changed. At the very same time, the maintenance cost has also changed. In the previous case, we had maintenance cost as 30,000, but now we have 24,000. Alright, because ज़्यादा चलेगी गाड़ी तो ज़्यादा maintenance मांगेगी, कम चलेगी तो कम मांगेगी. That is the assumption there. Cost of Ola Uber per kilometer basis पे again कम distance travel कर रहे तो maybe per kilometer का Ola Uber का cost कम है. But again, I am saying it repeatedly that what you can do is you can check your application and you can see how much you are paying divided by the number of kilometers that you are traveling and you'll figure out. And because traffic का भी consideration करना रहता है उसमें cost निकालने में, so it would be better that you have a personalized number for yourself. Again, I have considered the opportunity cost on the down payment that we have. Again, the rate of interest is equal to 9%. Now, after doing all these things, the cost of buying a car has tremendously increased on a per kilometer basis. The reason is very simple. हम लोग पहले divide एक बहुत ही बड़े number से कर रहे थे because we were traveling a lot many kilometers in the previous case. But now we are traveling very fewer kilometers compared to what we were traveling before. So henceforth the number B17, that is total kilometers that we will be traveling, वो हमारे केस में अब कम हो गया है. तो ऑटोमेटिकली पर किलोमीटर बेसिस पे जो हमारा कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है. So 22 rupees per kilometer cost आ रहा है. Again compare this with your Ola Uber, but I don't think इतना ज़्यादा होगा. So one conclusion that I can derive is that maybe for short distances we might use Ola Uber, but given that we are using the car for a longer travel or a longer distance travel, we might use our own car. At the very same time, we can also figure it out कि हमारा total cost of buying car कितना है. So you need to add up all the numbers in the very same way as you did before. You need to subtract the resale value. In this case, the resale value that I have taken is to be 30% of my original value because again I'm using the car for lesser kilometers, so automatically मेरा जो resale value थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा. So I have taken it as 30% unlike the previous case, and that is how you can add up all the numbers, and in the very similar way you can figure out how much you need to pay in totality for using Ola Uber, and you will figure out that the numbers are in favor of Ola Uber and not buying your own car. So this is how you can work it around. Apart from this Excel sheet, we also have many Excel sheets in our resources section on our website www.valuationary.com. You can visit it anytime and you can download blogs, you can read blogs, you can download Excel templates, you can figure out what you require, and as per your need there will be a lot of things that you can download and you can use it for your own purpose.